0.9 million visas are going to expire. How will we know how many of those actually wind up leaving? The vast majority leave voluntarily, and that's what's expected. There are an increasing number of international students making asylum claims. Whether you like it or not, are entitled to a form of due process in this country. I don't think you would. So how are you going to track then those whose work permits are expiring by the end of 2025? You're not giving me much confidence, or Canadians confidence, that you have a plan, because we have a breakdown by month how many student visas and work visas are expiring 2024. How many international students do you expect to leave, and how many have left so far when their study permits expired? Your department tabled documents with Parliament that show that 4.9 million visas are going to expire between September 2024 and December 2025. How will we know how many of those actually wind up leaving? As you noted, MP Kamich, when people come here, in many of their visa documents, they undertake to leave. As part of the Levels plan, there will be some visas that are temporary in nature that will not be renewed, and those people, when they undertook to come here, will be expected to leave. How will you ensure that a person whose visa has expired will leave? We know that just on study permits, there are 766,000 expiring by the end of December 2025. How will your department ensure that at the end of those study permit periods, those persons will leave? There are many ways that people leave the country, Tom. The vast majority leave voluntarily, and that's what's expected. So explain those ways. How will you ensure it? We work with our partners, including CBSA, to investigate, obviously, and prosecute those who violate immigration law. If someone refuses to leave, they're in violation of the law. And CBSA, after due process, has the legal obligation to remove people. Again, this isn't something that is taken lightly, but in the vast majority of cases, those people that have come here temporarily and do not have the right to stay, in fact, leave. The number of people who will be on a study permit that's expiring. So those who are expiring the end of December 2025, how many of them will actually leave? Are you saying 100% will be expected to leave, or are you going to send CBSA to chase all 766,000? You know that is not what happens. There are a number of things that occur. Some people actually get renewals. Some people get postgraduate work permits and stay a longer period. And we do work with CBSA to monitor these things. And when Statistics Canada reports on these, they take into account a whole variety of factors in estimating how many people are here and how many people have left. So at the end of this year, 2024, how many international students do you expect to leave, and how many have left so far when their study permits expired? How many have left as so far? Of November today? We don't or have October that number. 1st. Can you provide those to the committee? I don't know. We could look into it. Minister, how can you not know? It's in the Immigration Levels plan. There's a bunch of charts on page 22 starting about temporary resident immigration to Canada, persons who are in the country. It's in the Immigration Levels plan. It's in there. So how can you not know what that number would be? There's an order paper question, these government documents that were signed by your parliamentary secretary that were tabled with Parliament that has the numbers. So there's supposed to be expiring study permits in December, 84,642. And then in November, 36,130. In October, 10,182. In the month before, 127,348. So how many of those people are still in the country? How many have received the renewal? And how many of them have CBSA now looking at them? What I can provide to you as a number is the expected decrease over that period over the 3-year period, which is about 450 the first year, 450 the next year. That's net, incoming and outcoming, with a slight increase in 2027. So again, how are you going to track then those whose work permits are expiring by the end of 2025? Again, it's in the hundreds of thousands. You're not giving me much confidence, or Canadians confidence, that you have a plan, because we have a breakdown by month how many student visas and work visas are expiring, and you haven't provided any information on the means. How are you going to do it? You say you have partner organizations, you're working with people. What are you actually doing? What's the process? How are you going to ensure people abide by the visa conditions? Just like the vast majority of people that come to the country on a temporary basis, the vast majority leave. In some cases, increasingly many, I will concede, people decide to choose. They are in a situation of irregularity in that case. Once they have exhausted their remedies, they are removed by CBSA. So that's interesting, because you've made public statements repeatedly claiming
claiming and saying and alleging, based on IRCC data, that that is not what's going on. And that's why the IRB now has a record number of backlogged applications for asylum. And you have said that tens of thousands of them are actually international students who are staying longer to applying for asylum, and you're claiming they don't have a legitimate claim to make. That those are your quotes, the headlines you're generating by doing communications out there. So are you saying you don't have a plan, that this is part of your plan to have an increasing backlog at the IRB to deal with it? There are an increasing number of international students making asylum claims, I think with very little hope, given their conditions. They, whether you like it or not, are entitled to a form of due process in this country. I don't think you would purport to deny it to them. Are there things we can do to make sure that's more streamlined? I would encourage you to follow the next few weeks as we propose more amendments to the immigration system and the asylum system. But let's recall that every party in this House, except for the Liberal Party, voted down our asylum reforms in the budget. A bit shameful, considering that Conservatives had proposed these in earlier years, but you chose to play politics about it. This is a system that is in need of reform, and it's in need of reform in the right way. अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खरीद होंगे। आज हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले 6-8 महीने से मैं आपको कहता आ रहा हूं कि भाई इमिग्रेशन के मामला जो है वो बहुत सख्त होने वाले हैं। हम यहाँ रहते हैं, हमें एनालिसिस होता है, हम रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं, अपडेट आ रहा होता है, और मैं आपको हमेशा से यही कहता रहा कि यार देखो चीज़ें अब बहुत चेंज होने जा रही हैं, और ये जो लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं इनकी बातों में ना आइएगा। बहुत सारे लोगों ने शायद मेरी बात सुन भी ली होगी, तो उनकी एक जो है एक हार्ड अर्न मनी जो होती है वो बच गई होगी। कुछ लोगों ने मुझे बोला होगा कि यार बेवकूफ़ है, खुद तो वहाँ रहते हैं और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम तो कनाडा आना चाहते हैं। लेकिन वो इस चक्कर में उन्होंने आ तो गए हैं, लेकिन वो चीज़ें उनके हाथों से अब निकलती जा रही हैं, क्योंकि कनाडा ने बहुत ज़्यादा मज़ीद सख्तियाँ शुरू कर दी हैं इमिग्रेशन के मामलों को लेकर। जैसे कि अभी एक पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई है, जहाँ पर अपोजिशन की तरफ से जो हमारे ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर साहब से, उनसे बहुत सख्त सवालात किए हैं। और वो सख्त सवालात ऐसे थे कि मैं आपको वो वीडियो भी मैं जब मेरे इस कॉन्वर्सेशन के बाद जब आप मैं वीडियो को लगाऊंगा तो आप वो देखिएगा। उस वीडियो के अंदर आपको साफ नजर आ जाएगा कि मार्क मिलर साहब एक बैकफुट के ऊपर गए हुए थे, उनके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं थे, और वो मेरे ख्याल से होता है ना कि जैसे आए बाएं चाहे कर रहे थे, लेकिन वो जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन जवाब देने की पोजीशन पे वो नहीं थे। तो कहने का मकसद ये कि ये दिसंबर 2025 में 4.9 मिलियन लोगों के जो है वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर होने जा रहे हैं। क्या अब उनके वर्क परमिट को रिन्यू किया जाएगा, आगे उनका क्या फर्दर प्रोसेस होगा, ये सवालात उनसे किए गए। उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो वॉलंटियर चले जाएंगे, और कुछ लोगों को हम देखेंगे, ट्रैक डाउन करेंगे। हम CBSA से जो है वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद CBSA यानी CBSA यहाँ का जो कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके साथ ये राब्ते में है कि उसको किस तरीके से यहाँ से लोगों को ट्रैक डाउन किया जाएगा, किस तरीके से लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और स्टूडेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स का भी जो है मामला तो बहुत तेज़ी से उठ रहा है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आए हुए हैं, ये बड़े संगीन मामला यहाँ पे होते जा रहे हैं। लेकिन साथ में मार्क मिलर साहब ने ये ज़रूर कहा है कि हम वी आर कमिंग विद मोर चेंजेस का मतलब है कि मज़ीद सख्तियाँ यहाँ पर होने वाली हैं। डे बाय डे यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो आप गवर्नमेंट से, क्योंकि मिस हैंडल हुआ है पिछले 2-3 सालों के अंदर, वो इस चीज़ को समझ नहीं सके कि क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट है लिबरल की, जस्टिन ट्रूडो साहब की, उनको यहाँ की लोकल्स कैनेडियंस को सेटिस्फाई करना है कि हम यहाँ पर जो है इलीगल इमिग्रेंट्स और टेम्प्रेरी वर्कर्स जिनके जो है यहाँ पर वर्क परमिट एक्सपायर हो गए, हम उनको सीरियसली ले रहे हैं और उनको वापस भेजने की पोजीशन में है आएंगे, और उनको वापस भेजकर उनको दिखाना पड़ेगा, पेपर्स पे भी दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगला इलेक्शन, मैं पिछले 6-8 महीने से, शायद आपने मेरी बात सुनी होगी, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये पानीपत की लड़ाई है, ये पानीपत की जो लड़ाई है ना, ये मेरे ख्याल से जो इमिग्रेशन का जो अगला मार्का है, इलेक्शन का अगला जो मार्का होगा 2025 में, वो इमिग्रेशन को लेकर ही होगा। यहाँ पे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ है इन सारी मेजर्स को लेकर। हाउसिंग क्राइसिस बहुत शदीद आया है, जॉब क्राइसिस बहुत शदीद आया है, लोगों की बाइंग पावर्स के ऊपर यहाँ पे लोगों की कमर टूट गई है। यहाँ पर आप यकीन करें कि यहाँ के जो लोकल हैं वो जॉब के लिए परेशान है, वो 100 जगहों पे अप्लाई करते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती है। स्पेशली जो हाई स्कूल करने के हाई स्कूल ग्रेजुएट जो बच्चे होते हैं, जो सेकेंड ईयर यानी कि ग्रेड 12 करने के बाद वो 1-1.5 साल का ब्रेक लेते हैं, 1 साल का ब्रेक लेते हैं ताकि जॉब करके अपनी यूनिवर्सिटी की वो फीस निकाल सकें। उनको वो जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर शदीद किस्म का गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया है।
ये वीडियो मेरी आगे वाली ज़रूर देखिएगा कि आगे गवर्नमेंट क्या करने जा रही है और कितने सख्त सवाल मार्क मिलर साहब से किए गए हैं और उनके उसके बाद वो कोई इतना सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था। तो मेरी जिस आप अपनी वीडियो आगे ख़त्म करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, भाई यहाँ पर रह रहे हैं तो स्टेटस के साथ रहें और कोशिश करें कि आपका कोई स्टेटस बन जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं और जो वर्क परमिट होल्डर हैं वो अब वो असाइलम के ऊपर जाना चाह रहे हैं। असाइलम भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप ये याद रखिएगा जब यहाँ आकर असाइलम क्लेम करते हैं तो वो आपका स्टेटस डिफरेंट होता है। अब या तो विजिट वीजे पर आते हैं या आप किसी ना किसी दाएं बाएं कंट्री से घूम फिर कर यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी जान को यहाँ पे खतरा है। सिंपल सी बात है, कोई अगर आपको कंसल्टेंट ये कहता है कि यार नहीं हम तुम्हारा ये वीजा अप्लाई कर देते हैं, असाइलम फाइल कर देते हैं, असाइलम फाइल एक वर्क परमिट होल्डर और स्टूडेंट का यूं नहीं पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और सारी सर्टिफिकेट क्लियरेंस के बाद आते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर एक पढ़ने के नहीं आ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो वर्क परमिट के पर लोग आते हैं वो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, तो उनके पास गवर्नमेंट के पास यहाँ पर उनके सारा रिकॉर्ड होता है, सारी क्लियरेंस होती है। इसलिए ही तो मार्क मिलर साहब ने कहा है कि भाई यहाँ पर साफ लिखा हुआ होता है वर्क परमिट के ऊपर, आपका जब वर्क परमिट फिनिश हो जाएगा तो आप यहाँ से वापस चलेंगे तो उनको वॉलंटरी वो चले जाना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से जो वो उनके एनालिसिस वही एक उन्होंने बोल दिया अपनी जान छुड़ाने के लिए। यहाँ पर जो आता है वो वापस नहीं जाता। ये यहाँ की गवर्नमेंट को भी मालूम है, यहाँ जो आ रहे हैं उनको भी पता होता है। वो कहते हैं कि बस हमें 1 घंटे का भी कनाडा का वीज़ा दे दो तो बस उसके बाद हम अपनी लाइफ यहाँ पे खुद बना लेंगे। लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो चुका है और मजीद चेंज और सख्तियाँ होने जा रही हैं। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं, कोई ये सोच रहा है कि यहाँ से हम जो है डंकी लगाकर या ट्रक में बैठ के या बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका चले जाएंगे, यूएस चले जाएंगे, तो वहाँ की भूल में भी ना रहिएगा। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की गवर्नमेंट आ गई है और उन्होंने आते ही अपनी पहली स्पीच में ये कहा था कि भाई मेरा पहला ही टारगेट होगा जो पेपरलेस यहाँ पे लोग रह रहे हैं मैं उनको वापस भेजूंगा, चाहे उसके लिए उनको कितना बजट लगाना पड़ जाए। तो अगर नहीं हो रहा है यहाँ पर आपका कोई स्टेटस नहीं बन रहा तो रिस्पेक्टफुली वापस चले जाएं, वो वापस जाकर थोड़ा सा ट्राई करें या दूसरी अदर कंट्री के अंदर जाएं और स्टेटस के साथ रहें। अगर नहीं हो रहा तो वापस चले जाइएगा और यहाँ पर छुप छुपा कर रहने का कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट मजीद सख्ती करेगी, 1 साल तो यहाँ का 1 साल और अगला एक उसके बाद 1 और साल 2 साल यहाँ के बहुत सख्ती में गुजरेंगे। जो लोग पेपरलेस हो जाएंगे उनके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए। और मुझे आप टिकटॉक और मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला तब तक इन्हें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।